only because I was scared that maybe like if anybody is talking to me, they have their own agenda. They have some, their own reasons to talk to me. मुझसे किसी को क्या ही रीजन, क्या ही ले लेगा कोई मुझसे, और मैं किसी को क्या ही दे दूंगी, और जो मुझे नहीं देना है वो मुझे नहीं देना है. दैट फॉर दैट आई हैव टू लर्न नॉट टू गिव टू एनीबॉडी. दैट्स माय डिसीजन. दैट इज वेयर माय साम्राज्य identity comes, right? So when you are drawing your own boundaries and you know what decision you need to take, you will start trusting yourself, right? So when you're saying that I've forgiven, maybe actually you're not forgiven, and then start trusting yourself. And of course the lessons has to be learned. Okay? So now I want in the workbook, if you can just write one event, your old story and the new story around it. Means the lesson jo aapne. Thank you for sharing your scores. And that's a good score, I would say. If you could feel that only in one go, आप ज़्यादा उसको एक बार और करोगे, अगर कल कर लोगे तो then that would really make a difference. Trust me. कल करेंगे तो बेसिकली मेरा पॉइंट कुछ और है, मतलब आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड इन बिटवीन. मैंने 4 to 7 इसलिए दिया क्योंकि मेरे को अपना बेटे का जो एपिसोड याद आया उस पे इतना ज्यादा वो नहीं लगा कि नो आई वाज एट 2. नो. लेकिन हाँ, जो इंसिडेंट्स मैं अब याद करूंगा वहां शायद मैं 0 से 10 जाऊंगा. नो, द इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टोरी विच यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू. Right, या. right, right. So Shweta says 2 to 8, Alisha 2 to 7, Nita says 7, Prakash says 7. Okay. मेरा Deepti एक रिफ्लेक्शन है ऑन दिस कि yes. अभी तक जब भी मैंने ये ट्राई किया है, सो आई ऑलवेज यूज टू टेल पीपल that it's okay, it was not my fault, whatever happened, I trusted someone. For the first time I looked into my own eyes and it was different. Superb. Superb. And that is the shift. Yeah, I felt that. Superb. Thank you for sharing that, Alisha. Because when I am doing this with you and when I was creating this content, I could feel that shift in me. That's not easy, first of all. That's not easy. I'm saying that. That's not easy. Right? And then there's a lot release will happen. तो बहुत गिल्ट में रहना अच्छी बात नहीं है, उसको रिलीज करेंगे. लेट्स गेट फ्री ऑफ दैट एक्स्ट्रा बैगेज, राइट? नॉट रिक्वायर्ड. डू यू थिंक यू, मतलब राजा होकर या रानी होकर या एम्प्रेस होकर यू नीड टू होल्ड दैट हेवी बैगेज? Yeah, I'm back, right? So you can just write those 3 statements in your workbook. The questions are there. The event, the old story, and I would like one of you to if you can just share, and then we'll quickly wrap up. और आप उधर मेन ग्रुप में जाके लिख सकते हो forgiven and free. What are the words? Forgiven and free. Anybody would like to share that event if you're comfortable? The old story and the new story? Anybody? Only if you're comfortable. What is the old story and the new story? तो बेसिकली आप पहले अपने आप को जब गिल्टी फील कराए तो आप अपने आप को क्या बोलते थे? नाउ व्हाट यू आर गोना टेल योरसेल्फ?
राइट? व्हाट डिड यू लर्न? पहले आप बोल रहे होगे कि यार तू बेवकूफ थी, तूने उस पर For- ट्रस्ट किया. Forgiven and फ्री, FREE. So once you forgive yourself, then you feel free. And this thing you will understand more with the patterns in your life. पैटर्न्स बोले तो जो चीज आपके सामने बार बार आती है. ठीक है? I can share if nobody else wants to. Please, Alisha, please go ahead. Thank you. So the event is, of course, marriage. And I've always told myself ki, you were one of the people who everybody in the family used to look up to. All the cousins, everyone used to trust your decisions. You were doing so well and you trusted a man. You could see the red flags and still you fought with your family to get married to him. And that is why you were in this miserable life right now. That's how I've been telling myself. But it's okay. It was not your fault. You trusted him. He betrayed ye wo karke. But now I tell myself it was my karma, which was there to teach me a lesson that I have to start loving myself, start trusting myself, and take a stand when you think things are not right and not think about what other people will think. I mean, I did not step back because I used to think कि अब तो रोका हो गया है, अब तो शादी करनी पड़ेगी, घर वाले क्या सोचेंगे. Now, if it is not feeling right, then even if you have to step back at the last minute, you should. And that is the lesson it wanted to teach me to be more independent. And I've learned that lesson. So Super. I forgive myself. Super. And we keep going on a wrong path even when our instinct or the gut feeling is still talking to us, and we still move because of the external factors. It means your own soul is not aligned, but you are still going because of the external factors, right? तो आपने देखना है कि भैया आपकी सोल क्या चाह रही है, बट आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो. सो नाउ यू नो दैट व्हाट टू बी हर्ड more, right? You are getting aligned with that flow of your own um, kriya zone, right? Chalo. So good. Thank you for sharing that, Alisha. That was really helpful. And आपने already, तो आज आपने क्या करना है कि जिस बच्चे ने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, उसको आज जाके पैम्पर करोगे. ठीक है? What can you do for yourself? Pamper your child, pamper your inner child. That how you can do. Maybe like आज गरम खाना खा लेना, ठंडा हो गया तो दोबारा गरम करके खा लेना. ठीक है? और just treat yourself, probably with the song which you love to listen to. chocolate cake. चॉकलेट केक मंगा के खाएगी, फोटो खींच के भेज देना. Right? So it is going to be a confirmation to that inner child that you don't need to be punished any longer, because now you are forgiven and free, right? So now what we are going to do is, when you release all this, what has happened, the container का जो size है आपका वो बढ़ेगा, तभी तो उसमें पैसा आएगा. We are just clearing it off. Are you getting my thing? We are just clearing it off. We just don't need all this muck inside us, right? Are you ready to do that? Any query till now? Anything? Sure. Let's log the frequency. No doubt, no question. Good. So now, feel the earth once again. Close your eyes. Yes, Neeta, you want to say something before we Yes, go ahead? I want to ask कि कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं पर हमारा सही एक्शन भी इन जनरल वे में गलत माना जाता है. हम सही है बट एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो बाद में हमें लगता है कि हमें सही भी नहीं बोलना था. इट्स ओके, जो चल रहा है चलने दो. उस केस में हम कैसे उसको वो करें, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत हैवी आते हैं. वो
वो मोमेंट्री आते हैं नीता. लॉन्ग टर्म में व्हेन यू विल ट्रेन पीपल, सी दैट आपको लगा है कि वो सही है, राइट? आपने जो किया वो सही है, आप ये या कह रहे हो, है ना? यस यस एग्जाम्पल देना चाहोगे? मैं I'll explain it with the example so that you get more clarity. एग्जाम्पल मैं दूं ऐसा, हाँ. जैसे कि जैसे ऐसी कोई बात है जो मेरी बेटी को मुझे समझाना ही है और वो बहुत जरूरी है, वो टीन एज में है और मुझे उसको, वो अच्छे से नहीं समझ रही तो मुझे डांट के समझाना है कि ऐसे वे में, लेकिन वो आ, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। लेकिन जब उसको बोला जाता है, उसको समझाया जाता है, तो आफ्टर दिस हर बिहेवियर आर चेंज आर सी थिंक कि मम्मा क्यों ऐसे बोलती है, मतलब जो भी कुछ है, ये एज ए हम पेरेंट्स को, यदि वो तो डॉटर ही थे, हम पेरेंट्स को भी हम अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो ही सही है कि नहीं ये दिस इज राइट वे, बट मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि नहीं दिस इज ओनली फॉर मी, बट यदि हमने अपना एक्शन लिया बोला तो दे विल ओके, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बाय हार्ट एंड देन दे Right. ट्रीट डिफरेंटली। हाँ, फिर वो बीच में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्लैश हुआ, राइट? हाँ तो इफ आई टेक इट एज अ जनरलाइज्ड एग्जांपल कि अगर आपने किसी को यू नो आपने कहा कि आपने किसी को कुछ बोला जो आपकी आपकी सोल कह रही थी कि वो करेक्ट है और हमें इस या तरह से करना चाहिए, एंड देन बाद में क्योंकि उस बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया आपका डिसीजन, राइट? और फिर उस आप में और उसमें क्लैशेस हो गए, राइट? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि नीता, जब आप एक आइडेंटिटी से आप बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग विद योर ओन आइडेंटिटी, राइट? बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म, यस right? So as a parent you are doing that, or as a human being, if I am sharing something which is aligned with my identity, I'll share it. Why do you think you should not be sharing? Because it is having a different consequence which is not pleasant later on. मतलब आपको फिर बाद में ये लगने लग जाता है कि यार मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था. हाँ एग्जैक्टली कि फालतू बट में ही नहीं इतना बोलना ज्यादा चाहिए. वो हुआ है, इट्स ओके। अब आप ये बताइए कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एक मैं फिर बाद में एक मदर गिल्ट लाएंगे कि यार अगर कुछ बाद में यस लॉन्ग लॉन्ग टर्म अगर कॉन्सिक्वेंस हुआ तो फिर भी आप अपने आप को ब्लेम करोगे. यस दीज आर माय जी. वर्ड्स, सेम वर्ड्स आई Yes. सेड टू हर। तो आप पहले भी आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, आपने क्यों बोला? और अगर कुछ हाँ गलत होता है तो फिर बाद में फिर से आप अपने आप को ब्लेम करोगे कि मैंने पहले बोलना चाहिए था. तो आप कौन सा वाला चूज करोगे? मैं तो जो मैं करती हूँ मतलब कि बोल ही दूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। एक प्रॉब्लम तो गई ना, Now दूसरी the जब thing आएगी तो is, देखी। now the thing is, you being a mother identity, you are showing or you are training your daughter to listen to you because you have got some experiences from your life. यस Right? एग्जैक्टली। Now, the second thing is she also has an identity and she also has her own journey to go through and यस her own experiences to go through. Now, you cannot compel her to listen to you and understand you. That is not your part. यस Being a mother, you have to do your duty. You will explain her your experiences, what you have gone through. But जो बच्चे को अपनी जर्नी जानी है वो जाएगा ही जाएगा, आई right? एग्री। You cannot steal her experiences, right? तो नाउ यू नीड टू चूज कि भैया आपने कौन से वाले में, आपने फिर भी दोनों में ही आपको ब्लेम नहीं करना है. ठीक है ना? पहले ब्लेम करना है ना बाद में ब्लेम करना है. बिकॉज क्योंकि आपके इस टाइम के आइडेंटिटी को यू नो व्हाट इज द बेस्ट एंड दैट इज हाउ यू आर परफॉर्मिंग. मे बी लाइक 10 दिन बाद या 2 साल बाद आपकी जो मदर आइडेंटिटी है दैट विल चेंज एंड यू विल परफॉर्म इन अनदर वे बिकॉज यू विल लर्न अ फ्यू लेसन्स. यस ठीक है? ब्लेम नहीं करना है अपने आप को, गिल्ट फील नहीं कराना है. आई होप दैट गिव्स क्लैरिटी. ओके। दैट विल हेल्प, ट्रस्ट मी. बच्चों के साथ बहुत होता है, हमारे टीनेजर बच्चे, हम लोगों ने
बहुत वर्क किया है उस पे, राइट? चलिए, सो नाउ रेडी टू फ्रीक्वेंसी लॉक द फ्रीक्वेंसी। क्लैरिटी वन है? मोर डाउट। Sure. यदि हमारे पेरेंट्स, अब हम तो मैच्योर है, हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड उस एज में है, फिर भी हमारे कहीं वो मैच नहीं होता है, तो जस्ट बी स्टॉप आवर सेल्फ टू एक्सप्लेन एंड ये कलेश ही ना हो। हाँ कि बेटर है, क्योंकि हमें भी तो कहीं ना कहीं मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग ना, कि भाई एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, जैसे हमने बच्चों के साथ एडजस्ट कर लिया, ठीक है भाई, लेकिन जब हमारे बड़ों के साथ होता है तो हम कैसे उसको ले मैम? Always choose your battles. You don't have to But fight everywhere. I'm saying नहीं, that आई एम choose. नॉट फाइटिंग, नॉट नहीं नहीं, फाइटिंग इज फाइटिंग आल्सो बिग फाइटिंग, जस्ट यू नीता, लीव। फाइटिंग मतलब कि आपने कहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। यू हैव टू चूज दो स्पेसेस, ठीक है? एवरी टाइम वी कैन नॉट बी एक्सप्लेनिंग अस आवरसेल्व्स। समथिंग कोल्ड वार लाइक कि मैं ओके, तो दैट इज आल्सो वेरी सफोकेटेड मैम, means the energy should be flow, otherwise it will stuck. So how can we manage these things? कल हमने क्या बात की थी कि हम लोग पेरेंट्स को एक फ्रेम में डाल रहे हैं, दैट पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड अस। Yes, yes, yes. Okay. फ्रेम में नहीं डालना है ना, अपने आप को डालो, ना पेरेंट्स को डालो, ना बच्चों को डालो। Okay. हाँ जी प्रकाश, आप कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं वो अलीशा के साथ खेल रहा अच्छा, मन्नत हूँ। है वो, मन्नत। मन्नत उधर से हाथ हिला रही थी हम सबको, तो मैंने कहा कोई तो रिस्पॉन्स दे दो So, Neeta, because we start expecting and we start putting them into a frame that why are they not understanding? They being parent, they should understand us. They have their own understanding. आप समझ रहे हो अपने बच्चे को, बच्चा आपका वही सोच रहा है आपके, कि आप नहीं समझ रहे हो उसको। Can I add something here, Preeti? Because I have also dealt with my parents since childhood. मतलब पहले का श्वेता और अब में श्वेता में बहुत डिफरेंस है नीता मैम। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मे बी इफ यू गेट एन आइडिया आउट ऑफ इट। तो पहले कुछ भी जैसे पेरेंट्स करते थे तो मेरा हमेशा से हेटरेट था टुवर्ड्स देम, बिकॉज मुझे बचपन से वो प्यार नहीं मिला। बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, मुझे वो वूम में ही कहीं ना कहीं निग्लेक्शन वो मिल गया था कि यू नो दे डोंट वांट। अभी मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो मुझे बाद में बहुत लेटर ऑन पता चला, जो भी हीलिंग वगैरह मैंने उसकी करी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट वो हेटरेट ना शुरू से रही थी। तो कभी मैं फ्रेंड्स नहीं बन पाई अपने पेरेंट्स के साथ, विच आई रियली रियली वांटेड टू। तो बहुत टाइम तक वो स्नैपिंग रहता था मेरा, क्योंकि अंदर वो प्यार मिला नहीं, वो वॉइड था, तो मैं बाहर ढूंढती थी। तो वो उस केस में मैं क्या करती थी, मैं स्नैप करती थी, क्योंकि मैं अंदर से वो चीजें भी नहीं निकाल पा रही हूँ, हेटरेट नहीं निकाल पा रही हूँ, लव तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो वो अंदर ही अंदर नम होता गया। और जब वो नम होता गया, या तो वो स्नैपिंग में निकल रहा था, या मेरी बॉडी पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ये आने लग गए। तो काफी हद तक, जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। आज की डेट में मैंने हीलिंग्स तो ली ही ली हैं, बट जैसे प्रीति ने बताया ना कि हम फ्रेमवर्क में डाल देते हैं, तो मैंने ये समझ लिया था कि बाकी के पेरेंट्स तो सबको प्यार कर रहे हैं, उनके तो क्लोज हैं, उनके तो फ्रेंड्स बने हुए हैं, मेरे ही क्यों ऐसे हैं। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा ना कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे ये लेसन लर्न करना जरूरी था कि मुझे बाहर प्यार ढूंढने से पहले अपने अंदर प्यार ढूंढना है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, तो पहला रिलेशनशिप हमारा माँ के साथ नहीं, पहला रिलेशनशिप हमारा हमारे साथ होता है। तो जब हमारा हमारे साथ रिलेशनशिप खराब है, वो वॉइड अपने अंदर ही नहीं है, अपने अंदर ही प्यार नहीं भरा हुआ, तो हम बाहर कैसे देंगे, चाहे वो माँ बाप का हो, या चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे भाई बहन का हो। तो आज की डेट में मैं मॉम या डैड को कुछ भी, आज भी वो कुछ कुछ करते हैं ना, अभी भी, पहले गुस्सा आता था, अब लगता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ ना, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आई हैव मेड पीस विद इट, विद दिस सेंटेंस कि आई कांट कंट्रोल देम और देयर थॉट प्रोसेस और देयर इमोशंस। क्योंकि मेरे को अपने आप को चेंज करने में इतना टाइम लग रहा है, तो मैं उनको तो भूल नहीं सकती। दे आर इन 50s 60s, मेरे डैड को तो ब्रेन स्ट्रोक है, तो मैं तो उनको समझा भी नहीं सकती कि व्हाट यू आर डूइंग राइट और व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। तो मुझे इन दी एंड अपने आप को समझाना है, क्योंकि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। जब मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ, जर्नल कर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आई एम मेकिंग पीस विद माई सेल्फ कि दिस इज हु आई एम, दिस इज वॉट माई पेरेंट्स आर। उन्होंने ये नहीं किया, वो एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है। तो अभी तक मैंने डिनायल में थी,
पेरेंट्स तो हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, पेरेंट्स तो मेरे सारे फ्रेंड्स के बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं, मेरे पेरेंट्स ही फ्रेंड्स नहीं बन पाए। तो अब आज की डेट में मैं उनकी फ्रेंड बन रही हूँ। आई एम आस्किंग देम कि हम्म, क्या हुआ था, क्यों आप मुझे प्यार नहीं दे पाए, क्यों आपने मुझे निग्लेक्ट किया, क्यों ये। तो जब वो आंसर्स शेयर करते हैं ना, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ओ, कि इनको जितना पता था इन्होंने उस हिसाब से किया। तो अगर उनको शायद बेटर पता होता या उनके पेरेंट्स ने उनके साथ अच्छा किया होता, वैसा डील किया होता, तो शायद हम्म, उन्होंने सेम हमारे साथ किया होता। हम्म, तो आई हैव ये स्टॉप बहुत ही दैट। strong है। Yes, कि if they would have known better, they would have done better, yes. right? तो उनको उतना ही पता था, उतना ही कर रहे हैं वो। बट वी आर इन द रिजेक्शन मोड कि हम्म। भैया आप गलत कर रहे हो, हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनको। बट दे आर डूइंग द बेस्ट एज पर देम। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू एंड योर डॉटर। You are doing the best, but she is in the rejection mode. Once you start accepting your own self that I am okay as per what I am, everything will fall in place. ठीक है? और एक चीज मुझे भी बोलनी है यहाँ पे, जो मैंने पिछले कुछ टाइम में रियलाइज करी है, कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम किसी से कुछ भी कहते हैं ना, हम अंदर से चाहते हैं कि वो हमारी बात मान ले, और जब वो नहीं मानते ना, तब हम डिसअपॉइंट होते हैं। अगर हम Exactly. ये छोड़ देना कि वो मान ले, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि वो मानेगा तो भी अच्छा, नहीं मानेगा तो भी अच्छा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। वही न्यूट्रल, वो कि अंदर से माना होता ठीक है, है। नहीं माना समझ तो क्यों नहीं रहा है, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो होता है। तो न्यूट्रल बैलेंस रहना जरूरी है, क्योंकि पता है कि ना पेरेंट्स समझेंगे ना हमारे बच्चे समझेंगे, तो हमें वही अल्टीमेटली हमें ही चेंज करना है, हमें ही अपने आप को पीस में रखना है। Okay. Thank you, Sweta ma'am. Thank you, Alisha ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Thank you so much for putting those questions. That has actually brought a lot of clarity, I'm sure. Yeah. So let's now lock the frequency. Finally, you can feel the earth holding you. Connect with it and repeat after me that the debt is already paid. I don't have anything left inside me. The punishment is over, and I am now open to receive. I am now open to receive. My nervous system accepts safely whatever it comes. And I am frequency locked. You can open your eyes and you can see, understand that Lakshmi always loves the lighter heart, not the heavy wala heart. Do not hold anything inside you. Yes? Namaste, everyone. Thank you so much. Picture. प्रकाश, अभी तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे. दीप्ति एंड कीर्ति, आई थिंक दे वोंट बी एबल टू जॉइन. क्या बात है प्रकाश, अब तो अच्छा हो गया आपका. सही जा रहे हो आप आगे. अब मैं यही सेल्फी भेज रहा हूँ जितनों को भेज रहा हूँ. ऐसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू।